Good morning, everyone. We are going to study today the exercise 7.5, which is on the basis of proper, improper, and mixed fraction. I will explain you what is proper fraction, what is improper fraction, and mixed fraction, and then we will do the exercise on the basis of these terms. So the proper fraction is one in which the numerator is smaller than the denominator. As we know, the fraction means a number or a thing written in the form of numerator and denominator. फ्रैक्शन क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ हो कुछ भी, तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं. If in this fraction the numerator is smaller than the denominator, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. It is having example like 2/7. Here we have numerator as 2 and denominator as 7. That's why the 2 is smaller than 7 and this will fall in the proper fraction. It is a proper fraction. Next example is 7/9. You can see that the 7 is smaller than the 9. It means the numerator is smaller than the 9. Next thing is improper fraction. The improper fraction in which the numerator is greater or equal to the denominator. In which the numerator is greater or equal to the denominator. या तो बड़ा होगा या फिर वो उसके बराबर होगा. Example, you ever think about 4/4 कि सर ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है. सो इफ द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू द डिनोमिनेटर देन इट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट इज 7/2. 7/2 in which the numerator is greater than the denominator. In which the numerator is greater than the denominator as 7 is greater than 2. Next is 9/7. You can see if the numerator is greater than the denominator then it will fall in the category of improper fraction. Why it is improper? Because numerator is greater than the denominator and we can further divide. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए वो इम्प्रॉपर है. और न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट डिवाइड फर्दर इफ द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, बट इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू the denominator then we can further divide. That's this in this form the 4/4 you can divide 4/4, yes, and you will get 1. And here you can divide 7/2 and here you can divide 9/7. Yes, that's why it is improper. जहां डिवाइड करने की संभावना है उसे हम इम्प्रॉपर में रख देते हैं, जहां डिवाइड करने की संभावना नहीं होती है हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में रखते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स मींस आपको मिक्सचर याद है? मिक्सचर वाली नमकीन खाई है, उसमें कई सारी नमकीन मिला देते हैं, है ना, कई सारी नमकीन मिला देते हैं. तो यहां पर भी ऐसा ही होगा. मिक्सचर मतलब ये किसी ना किसी चीज का मिक्सचर होगा. मिक्सचर मतलब दो या दो से ज्यादा चीजें उसमें डाली गई होंगी. मिक्सचर मींस यू विल गेट टू और मोर देन टू थिंग्स. सो मिक्सचर or mixed fraction is when a whole number is with a proper fraction. किसके साथ होगा? proper fraction के साथ. if a whole number is with proper fraction, तो proper fraction को further divide नहीं कर सकते हैं और improper fraction को further divide कर सकते हैं. जिस चीज को further divide कर सकते हैं उसे तो यहां पे रखेंगे नहीं. तो या तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होगा जिसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों होंगे. द होल
the mixed fraction is a combination of whole number and the proper fraction. Okay, then it will called as mixed fraction. So let's see the examples. Examples are 1 whole 1 by 4. We read it as 1 whole and 1 by 4. You can see that 1 is smaller than 4. That's why it is a proper fraction. Here you can properly see this 1 is whole number and this fraction is a proper fraction because numerator is smaller than the denominator. Next example may be 7 whole 9 by 11. 7 whole 9 by 11. You can see 7 as a whole number and this 9 by 11 as a proper fraction because 9 is a numerator which is smaller than 11 as a denominator. Everyone knows that now? सबको समझ में आया? Let me see किसको क्या समझ में आता है. Sir, what does this mean? Which means बेटा आप क्या पूछना चाहते हो? जल्दी से बताएंगे मुझे. जिनको समझ में आ गया है या नहीं आया है, let's see that you understand that the what is proper fraction, improper fraction and the mixed fraction. We will do this type of findings. Now हमें यहाँ पे कुछ fractions दे रखे हैं. We have some fractions here and you just have to name them as proper, improper and mixed fraction. सबसे पहले हम mixed fraction ढूंढेंगे, है ना. सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? mixed fraction. तो वो सबसे अलग हो जाएंगे. mixed fraction को हम green से indicate कर देंगे. So this fraction doesn't have the whole number with it. It is just a 7 by 2. So this fraction does not have. Now the question number 5. Here we have the fifth fraction. It is 7 whole 6 by 7. Here we have two things. Mixed fraction has two things. First is whole number. Yes, we have 7. And second is proper fraction. Yes, we have it is. So 5 वाला जो fraction है वो हमारा mixed fraction हो जाएगा. Mixture fraction हो जाएगा. Next is 6 1. क्या 6 में हमारे पास two things हैं? एक whole number है और एक proper fraction है. क्या 6 में है ऐसा? क्या 6 में ऐसा है? Yes, we have a whole number and a proper fraction here. So this one is also a mixed fraction. Mixed fraction में दो चीजें होंगी बेटा, एक whole number होगा, एक proper fraction होगा. Can you see any other mixed fraction here? क्या 9th वाला mixed fraction है या नहीं है? सभी लोग चैट में लिख देंगे जल्दी से that 9th one is a mixed fraction or not, because here we have 1 as a whole number and 1 by 2 as a proper fraction. Beta type it fast. Yes, it is a whole number and mixed fraction and we will circle it. And what about the 7th one? What about the 7th one? Is it a mixed fraction or not? क्या ये mixed fraction है या नहीं है? बेटा how will we form mixed fraction? That is a different topic. अभी हमें आपको सिर्फ इतना सिखा रहा हूं कि हम लोग proper, improper और mixed fraction को पहचान सकें. I am teaching that you have to understand and you can see whether it is a fraction of proper fraction, improper fraction and a mixed fraction. इनको interchange करना एक अलग तरीका है. That I will teach. Okay, that I will teach. So you have to just think whether it is a proper, improper or a mixed fraction. So everyone will tell me that 8th one is a proper, improper or a mixed fraction. The 8th one is proper, improper or the mixed fraction. Can you tell me? Here we have numerator as 10 and denominator as 9. When numerator is greater,
जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, when numerator is greater then it is a improper fraction, और यहां पर numerator is greater, that's why it is a improper fraction. improper fraction कब होगा? जब उसे हम further divide कर सकते हैं, है ना? चलो अब हम फर्स्ट से शुरू करते हैं. फर्स्ट वन इज 7/2. क्या हम इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? हाँ जी, 7/2. क्या हम इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? यस सर, यू कैन डिवाइड इट फर्दर. That's why it is a improper fraction. Here the numerator is greater than denominator. Yes, numerator is 7 and denominator is 2. That's why it is a improper fraction. Now, question number 2. Question number 2. Question number 2 के बारे में क्या ख्याल है आप सबके? ज्योति is saying proper and Arnav is saying proper. Hemang is also saying proper. What about others? बाकी सभी बच्चे कहाँ गए हुए हैं? खोए हुए हैं या अपना चैट चलाकर या अपना जूम चलाकर सो गए हैं? Adya is also saying it is a proper. Devang is saying proper. Anya is saying improper. Karthik is saying proper. Virat is saying proper. Kesav is saying proper. Chavi is also saying proper. Mohammed is also saying proper. Tanis is also saying improper. बेटा देखो improper नहीं है ये क्या है? प्रॉपर है. क्यों है ये प्रॉपर? क्योंकि हम 2 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं. क्या हम 2 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. जैसे ही पता चल गया नहीं कर सकते हैं तो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन. बिकॉज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं. 2 को हम 7 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. नाउ एवरीवन come on the question number 3. Here we have 7/7. Here we have 7/7. बोर्ड पर देखो और ये देखो कहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर है. Where we have the numerator is equals to denominator. हमारे पास कहां पे किस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो सकता है? Where in the fraction we can have the numerator equal to the denominator. Very good. This is the most important question of the fraction where the numerator is equal to denominator, and this type of fraction is called improper fraction. So this will be in the red. Now we have the question number 4 as 9/7. 9/7 is a proper or improper, because you have to just identify whether it is a improper or proper. Nothing more you have to do. Very good. Devang, why it is proper? बेटा proper में तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर छोटा होता है. क्या यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है? यहाँ पे न्यूमरेटर 9 है और डिनोमिनेटर 7 है. We can further divide. That's why it is a improper fraction. Very good everyone. तो improper fraction अच्छे से समझ में आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Next is question number 7. 9/10. Everyone should answer about 9/10, whether it is a improper, proper or a mixed fraction. Himangi is saying it is a proper fraction. Arnav is saying it is a proper. Chavi is saying it is a proper. Karthik is saying proper. Arnav is saying proper. Devang is saying it is a proper fraction. Where are other? Uday is also saying it is a proper fraction. Where are the other? Kesav is saying it is a proper fraction. 9/10. Jyoti is saying proper. Tanis is saying proper. Anya Agrawal is also saying it is a proper. Bhavyansi is saying proper. Very good, beta. Very good. Muhammad Ubaid is also saying it is a proper. So, do you understand what is proper fraction now? Where numerator is smaller than denominator, you can't divide numerator with the denominator. So we can't divide 9 with 10. That's why it is a proper fraction. Very good. It is a proper fraction. So now 10th one. Here we have 100, 2 and 100. Here we have 100 whole and 2/100. It is a
विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। किसी को भी मिक्स फ्रैक्शन में डाउट है तो हमें यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए। जो दो चीजों से जुड़कर बना है, दो चीजों को मिक्स करके बना है, वो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। तनिष्क बेटा, क्या आपको समझ में आया कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों है? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन इसलिए है क्योंकि हमारे पास यहां पे 100 है एज अ होल नंबर, एज अ होल नंबर, और इसके साथ में हमने लिखा हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां पे दो चीजों को मिक्स किया गया है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। जो आपको ऐसे लिखा हुआ दिख जाए कि एक होल नंबर लिखा हुआ है और उसके साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तभी वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं सर? देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए मैं फिर से बता देता हूं, जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर या फिर बड़ा होता है, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सो द ए पार्ट इज 4/7, 6/7, 8/7, 1/7, 9/7. So tell me which of the fraction is improper here? 4/7 is improper? No. 6/7 is improper? No. And 8/7 is improper or not? जल्दी बताएंगे बेटा, कहां गए सभी बच्चे? बेटा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से बताओ which of the fraction is improper fraction? 4/7, 6/7, 8/7, 1/7, 9/7. किस वाले फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर बड़ा है? जल्दी बताओ। 4, 6, 8, 1, 9, किस में न्यूमरेटर बड़ा है? जल्दी बताओ मुझे। दिस इज अ प्रॉपर, दिस इज अ प्रॉपर, दिस इज अ इम्प्रॉपर। हमें इम्पोस्टर मिल गया। अमंग अस कौन कौन खेल रहा है आजकल? तो हमें इम्पोस्टर मिल गया, इन्वेडर मिल गया, 8 और 9। ठीक है, तो गेम को ज्यादा नहीं खेलते हुए हम लोग वापस से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमें जो भी मिल गया उसको बाहर निकाल दिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर बी। B1 is 5, 1, 6, 3 and 11. Divide by 11, 5 by 5 by 5 by 5 and by 5. बताओ जल्दी से कौन कौन है इसमें, इन्वेडर कौन है? जल्दी बता दो बेटा। क्वेश्चन नंबर बी में, पार्ट बी में, कौन से फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर है या फिर बड़ा है? हिमांग इज सेइंग 11। ओके, क्या और कोई भी है? 11 के अलावा कोई भी है? छवि, वेरी गुड छवि। छवि ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। छवि इज वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से आंसर करती है और सबसे पहले आंसर कर देती है। वेरी गुड। 5/5 इज ऑल्सो इम्प्रॉपर बिकॉज न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू द डिनोमिनेटर। ओके, क्वेश्चन नंबर सी एंड क्वेश्चन नंबर डी जल्दी से अपनी बुक में कर लो बेटा, बहुत जल्दी से अपनी बुक में कर लो क्वेश्चन नंबर सी एंड डी। अच्छा जी, इम्प्रॉपर क्या होता है? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बड़ा होता है। मिक्स क्या होता है? होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना? तो चलो देखते हैं इनको चेंज करना, कैसे करते हैं इनको चेंज, है ना? तो पहला क्वेश्चन है ए इज 7/2। 7/2 आपको सबको देखकर पता चल गया हो ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर क्यों? क्योंकि हम 7 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स डिवाइड 7/2। सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं 7 को 2 से। डिवाइड इट फास्ट, डिवाइड इट फास्ट। 7/2 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3s are 6, so remainder is 1. So here we have the quotient is 3, remainder is 1 and this one is divisor. देखो डिवीजन चैप्टर आप भूले तो नहीं हो? कौन कौन भूल गया है डिवीजन चैप्टर को? बेटा वो बेसिक है, आप वो चैप्टर नहीं भूलेंगे। सो
we all know this is a divisor, this is the dividend, this is quotient and this is remainder. आपको क्या बनाना है? मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन के लिए हमारे पास इसी को बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 7/2 इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट. क्वोशिएंट के लिए क्यू ही लिख लेते हैं. क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. इट्स इक्वल्स टू 3 प्लस 1/2. और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 1/2. तो कुछ लोगों को ये ऐसे सिखाया जाता है, देखो कुछ लोगों को कैसे सिखाया जाता है, ये QR/D ऐसे सिखाया जाता है. QR/D. लेकिन Q को ऐसे ही थोड़ी लिख लेते हैं. अगर मैं यहां से प्लस हटा दूं तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सर ने प्लस लगा दिया है तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी. अरे सर ने प्लस क्यों लगाया है? बेटा एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन के साथ में क्या रिलेशन है उनका, वहां पर प्लस लगाया हुआ है. सर ने पहले भी प्लस लगाया है. सो होल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? ओके ना, अभी देखो हमने 7/2 को डिवाइड किया. डिवाइड करने के बाद में हमें पता चला क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है और डिवाइजर क्या है. तो हमने उसी फॉर्म में लिख दिया, QR/D फॉर्म में लिख दिया. डायरेक्ट आप करना चाहो तो ये सब भूल जाओ. अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो ये सब भूल जाओ और बस ये याद रखो QR/D. QR/D. आपने QR/D किया तो 3 1/2 आ गया. नाउ द क्वेश्चन नंबर बी. अब मैं क्वेश्चन नंबर बी कर लेता हूं जल्दी से. क्वेश्चन नंबर बी में और आसानी से समझ में आएगा आपको कि हम कर क्या रहे हैं. हमें बस QR/D की फॉर्म में लिखना है बेटा. क्वेश्चन नंबर बी इज 22/13. डिवाइड करेंगे 22 13 0 1 टाइम 13 and this will be 9. So quotient is 1, remainder is 9 and divisor is 13. So we will write it. Quotient is 1, remainder is 9 and divisor is 13. Right? तो हमारा क्वेश्चन नंबर डी भी हो गया. सी इज इन योर होमवर्क एंड DEAF हमने रिवीजन के लिए छोड़ दिया है. फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 3. A part is 3 whole 1/4. 3 whole 1/4. देखो एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको कैसे करते हैं लोग. 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 में और 3 को फिर जो आंसर आता है उसको प्लस कर देते हैं. इसके लिए आपने याद किया होगा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये याद किया था बच्चों? हाँ जी, उसी को यूज करेंगे यहाँ पे, है ना? उसी को यूज करेंगे, बिल्कुल उसी को यूज करेंगे. सो विच वन इज डिवाइजर हियर? हमने डिवाइजर कहां लिखा है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ QR/D. इट इज इन द फॉर्म ऑफ QR/D. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है D मल्टीप्लाइड बाई Q प्लस R/D. सो व्हाट इज D हियर? देखो ये फॉर्मूला याद ना रखो तो डायरेक्ट कर लिया करो आप, मैंने अभी बताया मल्टीप्लाई करके. एंड दिस विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1/4 and this will be 12 plus 1 13/4 and this will be 12 plus 1 13/4. डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, मैंने बताया है यहां पे मल्टीप्लाई करो 4 3 12, जो आंसर आए उसमें प्लस 1 कर दो. डायरेक्ट भी कर सकते हैं बेटा आप. नाउ द बी पार्ट. बी पार्ट इज वेरी इजी. अरे ये क्यों मिटा दिया मैंने? कोई बात नहीं, वी आर जस्ट गोइंग टू डू द बी पार्ट. सो बी पार्ट इज 1 whole 2/9. 1 whole 2/9
एंड द फॉर्मूला इज सिंपल, डी मल्टीप्लाइड बाई क्यू प्लस आर अपॉन डी। देखो जिसको फॉर्मूले से करना है वो फॉर्मूले से करो, जिसको विदाउट फॉर्मूला करना है बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला लिखने की, है ना। तो हम क्या करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, सभी लोग करो, 9 1s are 9। अब क्या करेंगे उसमें प्लस 2, प्लस कर दो 2 को, कितना आ गया 11। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूले में लिखना चाहो तो लिख दो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 अपॉन 9 एंड दिस विल बी 11 अपॉन 9। वेरी गुड छवि, छवि ने बिल्कुल सही आंसर किया, देवांग ने बिल्कुल सही आंसर किया। एंड द लास्ट वन इज सी पार्ट। बाकी के पार्ट्स हम कहां करेंगे, रिवीजन में करेंगे। बाकी के पार्ट्स हम कहां करेंगे, रिवीजन में करेंगे। सभी लोग सर के साथ किया करो बेटा, सर के साथ भी करोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। नाउ द सी पार्ट इज 1 whole 7/8, यही है। हाँ जी, डायरेक्ट करते हैं इसको। डायरेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 8 आ जाएगा, 8 1s are 8। बाकी उसमें क्या प्लस करेंगे, फिर 7 को प्लस कर दो, 7 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 1s are 8 प्लस 7। वेरी गुड देवांग, 15 आ गया। तो 15 अपॉन 8, क्या यही आंसर आएगा, लेट्स सी यही आंसर आता है या नहीं आता है। बाय फॉर्मूला अगर हम लोग करेंगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 7 अपॉन 8, तो हमारे पास कौन आ जाएगा, 15 अपॉन 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, DEF आपके लिए रिवीजन में रख दिया है।